This book has become my absolute favorite in learning simple meditation techniques by Swami Purna Chaitanya. Hi everyone, this is Nikita. Welcome back to my channel, and this video is going to be a book review on Looking Inward, Meditating to Survive in a Changing World by Swami Purna Chaitanya. So before beginning the introductory part of this book, I would like to tell you that Swami Purna Chaitanya met his master at 16 years of his age, and his master is Sri Ravi Shankarji, who is the founder of Art of Living Foundation. And it has been about 15 years he has been meditating since then. He has been guided by Sri Ravi Shankarji itself. And the last thing that he is currently working as a director at AOL Foundation in India as well as in Africa. तो बुक के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि जो अभी तक का टाइम हमारा रहा है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हमारी चेंज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ बीट पैंडमिक, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रियॉट्स, फेक न्यूज़ एंड एक्सेट्रा. तो उस सब की वजह से हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पे एज ए ह्यूमन कितना इफेक्ट पड़ता है. एंड ऑल दीज इफेक्ट वी डू नॉट लेट गो, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है ऐसी अदर देन मेडिटेशन दैट वी लेट गो ऑफ दीज फीलिंग्स. तो उसके लिए ऑथर ने पूरा ये एक बुक लिखी है जिसमें कि उन्होंने गाइड किया है हाउ टू डू दी मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड व्हाई इज इट नेसेसरी. बुक के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो बुक बहुत ही सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है. ऑथर हैज़ अरेंज्ड थिंग्स वेरी क्रोनोलॉजिकली सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजी मैनर अबाउट द मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. उन्होंने बहुत सारे विजडम सूत्रास भी बुक में मेंशन करे हैं एंड द 10 मिनट्स एक्सरसाइजेज दैट पीपल कैन फॉलो डेली. एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन रिलेटेड एक्सरसाइज है इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स, देन from where you can actually introspect yourself that what are the lacking points that you have within and how you can improve them. Also in the book there are a lot of beautiful stories about the people and their experiences and how meditation has helped them. Stories बहुत ही crisp और short form में explain की गई हैं, बहुत ही अच्छे से story teller format में. And the author has emphasized on the important principles of meditation in the entire book, also telling about the need to become unshakable and how the mind needs to be very strong to deal the feelings and emotions in the ever-changing world. Yes, you read it right. Meditation is not mindfulness. पहले मुझे भी ये डाउट था कि मेडिटेशन शायद से एक बड़ा पार्ट है माइंडफुलनेस का, बट माइंडफुलनेस इज अबाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. माइंडफुलनेस उसको कहते हैं जैसे जब मैं खाना भी खा रही हूँ एंड ऑल्सो वॉचिंग अ मूवी इन द लैपटॉप. सो आई एम नॉट बीइंग माइंडफुल ऑफ द फूड दैट आई एम ईटिंग, द कलर, द स्मेल or the taste of the food. I'm not able to experience that because I'm multitasking. So I'm not being mindful of what I am eating. So mindful does not require practice, introspection and commitment. While meditation do require practice, introspection and commitment, you can be mindful at any time of the day, in fact the entire day. But while meditating, you have to take out a particular time period in the entire day, 15-20 minutes in the morning or in the evening or at any time of the day. This line in this book, which goes like this: the quality of our lives is greatly dependent on the quality of our mind, and yet we have never learned how this mind really works or how to manage it. So this line hits me really hard when I read it for the first time, because we have actually never learned any of the aspect of how to control our mind, which is really important to lead an entire life on this planet and to deal the emotions and the feelings that we have got into ourselves. किसी को भी मज़ा नहीं आता अपने past experiences में रहने में या फिर future के बारे में चिंताएं करने में, but वो automatically आ जाते हैं because we do not know how to control our mind. और ये हमें किसी ने सिखाया भी नहीं है, और हम जितना ट्राई करते हैं उन चीज़ों को रोकने की, उन थॉट्स को रोकने की, तो वो उतना ही आती हैं. और वो इसलिए आती है क्योंकि हमने कभी ये सीखा ही नहीं कि हमें अपने थॉट्स कैसे कंट्रोल करने हैं. तो यहीं पर ऑथर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है दैट योर माइंड इज़ गवर्न बाय एफर्टलेसनेस एंड नॉट बाय एफर्ट. और ये जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर एनर्जी लेवल्स. हर किसी का अपना एक एनर्जी लेवल भी होता है, एक ऑरा होता है विच क्लियरली डिफाइंस देयर एनर्जीज एंड हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू द चेंजेस हैपनिंग अराउंड देमसेल्व्स एंड द इमोशंस एंड द फीलिंग्स, हाउ दे रिएक्ट टू दैम.
ऑथर ने ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से कनेक्शन बताया कि जो हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स और हमारा माइंड किस तरीके से कनेक्टेड है। एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, अ काइट एंड अ स्ट्रिंग। जैसे हम एक काइट को उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी काइट को कंट्रोल करती है, उसी तरीके से जो हमारा माइंड है वो कंट्रोल होता है थ्रू आवर ब्रेथ। तो ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स आना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू लर्न द कंट्रोल ओवर योर माइंड। सो अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो आप अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्पैशन, सिंपल एंड ईजी टर्म्स में बोलें तो लेटिंग गो। Dispassion, in other words, if we call it as the ability to drop everything for a moment, not craving for anything, at least for a moment. Principles of dispassion के अंदर 3 important lines जो author ने elaborate करी हैं वो हैं I am nothing, I want nothing, I don't have to do anything. सो बेसिकली जब आप लेट गो कर देते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, तभी आपकी जो माइंड को है रियल रेस्ट मिल पाता है, विच इज़ डीपर देन स्लीप। In the later part of this book, Swami Poon Chaitanya himself conducts a lot of meditational retreats. So he has explained his own experience of conducting these meditational retreats with the people in and around India, in abroad also. So he tells that जब भी लोग मेडिटेशन करते हैं उसके 15-20 मिनट्स बाद अगर वो बिगिनर हैं या फिर दे आर ऑलरेडी मेडिटेटिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। दे फील वेरी एनर्जेटिक, अलाइव, काम, एंड देयर माइंड इज़ एट अ वेरी डीप रिलैक्सेशन। वो एक चीज़ और एम्फेसाइज करते हैं इस चैप्टर में, दैट गाइडेंस रियली मैटर्स, कि आप किसके अंडर वो मेडिटेशन कर रहे हैं, हु इज़ द person who is making you meditate. So guidance makes a big difference, and meditation is a skill that comes with the right guidance and sincere practice. ऑथर इस बुक में अपना एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं जब वो केप टाउन जाते हैं एक मेडिटेशनल प्रोग्राम के लिए। वहाँ पर उन्हें एक 115 ईयर ओल्ड आदमी मिलते हैं जो कि ओल्डेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ है। हिज नेम इज़ फ्रेडी ब्लॉम एंड हिज वाइफ इज़ 86 ईयर्स ओल्ड, जीनेट। तो ऑथर को थोड़ा एक एंथुजियाज्म रहता है उनसे मिलने का, तो वो क्योंकि केप टाउन में ही उनका घर होता है तो वो वहाँ जाकर मिलते हैं, थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, और उन दोनों कपल को वो ऑफर करते हैं टू लर्न दी योगा एंड मेडिटेशन। तो उन्हें वो एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं वहाँ पे 10-15 मिनट्स का। आफ्टर दैट मेडिटेशन गॉट ओवर, तो देखते हैं कि फ्रेडी ब्लॉम जो है वो टोटली एक तरीके से नींद में जा चुके हैं, विच इज़ एक्चुअली अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। सो व्हेन ही गॉट अप फ्रॉम द डीप स्लीप, ऑथर उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो फ्रेडी ब्लूम बोलते हैं कि ही फेल्ट अ रियली डीप रेस्ट विद इन हिमसेल्फ, फिजिकली, इमोशनली ही वॉज वेरी मच टायर्ड एंड ड्रेन। तो उनको बहुत ही डीपली रेस्ट काइंड ऑफ फीलिंग जो है महसूस होती है। एट दी एंड फ्रेडी एंड जीनेट थैंक यू कहते हैं स्वामी पूर्ण चैतन्य जी को विजिट करने के लिए एंड आस्क देम टू विजिट अगेन। The last 2 chapters of this book are really very important in terms of learning the meditation technique, कि आपको क्या क्या करना होता है from the very starting of learning the meditation technique till the end। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बट वो बहुत ही अच्छे से इस बुक में एक एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है ऑथर ने। लाइक आपको क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी होती हैं, आपको कब क्या फोकस करना होता है, जो भी थॉट आती है, हाउ टू लेट गो ऑफ दैट थॉट at that particular time, and what to focus when, and how to start meditating actually in presence of a guided master, teacher, and the technique both are very important aspects of meditation। उन्होंने एक लाइन भी मेंशन करी है इस बुक में, आई वुड लाइक टू रीड दैट, बिकॉज इफ यू लुक एट ऑनरिंग, at having a sense of reverence, then you will see that it is nothing but a total attentiveness of mind coupled with a tinge of gratitude. Happiness is in the present moment. So as soon as we realize that the switch is within us, we will start looking inward from today itself. एक बहुत ही अच्छी बात भी बोली गई है इस बुक में regarding finding the time to meditate. Meditation is all the more needed when we live a busy and stressful life. More than a luxury, it becomes a necessity if you want to maintain a certain level of happiness and productivity, which I find is quite true in today's world. इस बुक को पढ़ के क्लियरली एक बात अच्छे से समझ आती है दैट
Meditation has to be done anyhow. You have to take out the time no matter what your priorities are. You have to revisit meditation as a priority also. सो इसमें इस बुक में श्री श्री रविशंकर जी भी ये चीज़ बोलते हैं दैट वी टेक केयर ऑफ आर डेंटल हाइजीन. सिमिलरली वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर मेंटल हाइजीन. So meditation is equally important and we should make it a part of our daily routine, which I think is a must in today's stressful world. Thank you.